بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لیول کیمبرج بورڈ سلیبس بی کوڈ 3248۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی اردو کے P2 کے بارے میں۔ 50 نمبر کا یہ پیپر ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے دورانیہ ہے 1 گھنٹہ 30 منٹ یعنی 1.5 گھنٹہ۔ اسپیسیمن پیپر کی مدد سے میں آپ کو بتاؤں گی P1 کے مقابلے میں دیکھا جائے تو P2 زیادہ آسان ہے۔ آج P1 ہو گیا ہے اور الحمدللہ بہت آسان پیپر آیا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ P2 بھی اتنا ہی آسان آئے گا۔ P2 کا پہلا سوال، مشق نمبر 1۔ اسے جملہ سازی بھی کہہ سکتے ہیں اور جملے سے جملے بنانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ پچھلے 20 سال سے جب پرانا سلیبس تھا یہ سوال مستقل آ رہا ہے، مئی جون میں بھی، اکتوبر نومبر میں بھی۔ اگر آپ لوگ تیاری کرنا چاہتے ہیں سوال کی 3248 پاسٹ پیپر نکالیں اور P2 کا پہلا سوال ہے اور 5 نمبر کا ہے اور وہاں سے آپ تیاری شروع کریں۔ 2003 سے یہ سوال موجود ہے لیکن آپ کو ہو سکتا ہے 2003 والا پیپر انٹرنیٹ پہ نہ ملے۔ 2004 سے 2004 مئی جون، 2004 اکتوبر نومبر، اس طرح سال بہ سال یہ سوال نکالیں، اس کی مشق کریں، انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ آپ اس سوال کو حل کر لیں گے۔ پچھلے 20 سالوں میں جو یہ سوال ہے جملے سے جملے بنانا، یہ جملہ سازی، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، وہ کم سے کم 11 سے 13 طریقے ہیں، لیکن اس وقت اسپیسیمن پیپر میں جو طریقہ دیا گیا ہے یہ وہی طریقہ ہے جو 2003 میں دیا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اسی طریقے کو دوبارہ دہرائیں۔ اچھا اب یہ طریقہ کیا ہے دیکھیں، مثال کی مدد سے آپ جب اپنا پیپر بھی حل کریں گے تو سب سے پہلے مثال کو بغور پڑھیں گے۔ مثال کو بغور سمجھ لیا تو پھر پورے 5 جو جملے ہیں وہ ان کو مکمل کرنا آسان ہوگا اور 5 نمبر لینا بھی۔ مثال ہے، میں نے یہ فلم پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اب کیا ہے، لفظ تو بدل جائیں گے لیکن معنی تبدیل نہیں ہوں گے، مفہوم تبدیل نہیں ہوگا۔ میں پہلی بار یہ فلم دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح سے جیسے امتحان کے دوران بولنا منع ہے تو امتحان کے دوران بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ لفظ بدلے، معنی تبدیل نہیں ہوئے، مفہوم وہی کا وہی رہا۔ علی 5 سال پہلے علی نے 5 سال پہلے اس اسکول میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ علی پچھلے 5 سال سے اس اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ تیسرا، سائمہ اور مریم کی پہلی ملاقات 13 سال پہلے ہوئی تھی۔ سائمہ مریم کو 13 سال سے جانتی ہے۔ نمبر 4، وہ دکان پر گیا لیکن اس نے خریدا کچھ نہیں۔ وہ خریداری کیے بغیر دکان سے باہر آ گیا۔ 5واں اور آخری، تو کوشش کے باوجود اسلم اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اسلم نے کوشش تو کی مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ P2 کا دوسرا سوال، مشق نمبر 2۔ یہ سوال 10 نمبر کا ہے۔ کیمبرج بورڈ نے نئے سلیبس میں پہلی بار دیا ہے۔ پہلے سلیبس میں خالی جگہ 5 نمبر کی ہوتی تھی اور اس کا طریقہ کار اس سے مشکل ہوتا تھا اور مختلف بھی ہوتا تھا۔ یہ والی خالی جگہ بہت آسان ہے لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ایک بار اس کو پڑھ لیجئے گا۔ ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں بچے، حل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ پہلے جو عبارت دی گئی ہے اس کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر مثال کو سمجھیں۔ جیسے ہے آج کل کی مصروف ترین، اب چاروں بلاکس میں سے کیا آ رہا ہے، انہوں نے اے پہ ٹک لگا دیا ہے۔ آپ کا ٹک بھی اتنا ہی چھوٹا ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ سوال سافٹ ویئر چیک کریں، آپ کا ٹک اگر بلاک سے اسکوائر سے باہر ہوگا، پھر اگر ایرر آ گیا تو پھر آپ کہیں گے ہمارے نمبر کیا ہو گئے۔ کوشش کیجئے گا سوچ سمجھ کے کسی ایک بلاک میں ٹک کریں، کاٹ پیٹ سے گریز کیجئے گا۔ اچھا اب دیکھیں اس میں بہت آسان طریقہ ہے، مثال کی مدد سے آپ نے دیکھا، اسی طریقے سے 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور 15، 6 سے لے کے 15 تک 10 آرام کے ساتھ۔ جیسے چھٹے کی ایک میں مثال دوں گی، اے نامکمل، بی نادان، سی ناممکن، ڈی ناواقف۔ اب کیا کرنا ہے، عبارت تو آپ پڑھ چکے ہیں، عبارت کے بعد آپ جائیں گے انٹرنیٹ، ذہنی دباؤ اور پریشانی سے بچنا تقریباً ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہوتا جا رہا ہے، نامکمل ہوتا جا رہا ہے، نادان ہوتا جا رہا ہے، ناممکن ہوتا جا رہا ہے یا ناواقف۔ اس کا صحیح جواب ہے سی، ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا ایک بات کا دھیان رکھیے، اگر آپ کو کسی الفاظ کے معنی نہیں آ رہے تو اور
जल्दी जल्दी कोशिश करें एक एक लफ्ज को उस जुमले के साथ मिलाकर पढ़ने की, और कौन सा जुमला है जिसको पढ़ने के साथ रवानी आ रही है और ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं आ रही है। तो अगर माने नहीं भी आ रहे, इस तरीके से भी आप ब्लैंक्स को भर लेंगे। कोशिश करके 10 मिनट में इस सवाल को मुकम्मल कर लीजिएगा, और 5 मिनट में मश्क नंबर 1 का सवाल जुमला साजी उसको मुकम्मल हो जाना चाहिए। 15 मिनट में आपके ये दोनों सवालात मुकम्मल हो जाने चाहिए। अच्छा, हर सवाल को करने के बाद रीचेक जरूर करें, और हाथ के हाथ जुमला साजी की उसे रीचेक कर लें, खाली जगह पुर की उनको रीचेक कर लें। पूरा पेपर रीचेक अगर टाइम बाद में बचे तो एक साथ करें, नहीं बच रहा, बचे या ना बचे, वो पूरा एक साथ करना है, लेकिन जैसे एक सवाल मुकम्मल हो रीचेक करना है फौरन आपने। इंशाल्लाह जो बच्चे रीचेक करते हैं, अपनी गलतियों को दुरुस्त करते हैं, उनका ग्रेड भी अप होता है। मश्क नंबर 3 का सवाल है मजमून नवीसी। 200 अल्फाज पर मुश्तमिल आपको मजमून करना है, और मजमून के 3 पैराग्राफ होंगे, इस बात को ध्यान में रखें। 200 अल्फाज की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होनी चाहिए कि तीनों पैराग्राफ में अल्फाज मसावी हो, तो भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक में 68, दूसरे में 68, तो हम क्या करते हैं 210 ले लेते हैं, 10 अल्फाज बढ़ा देते हैं, 70 70 70 तीनों पैराग्राफ में कर लेते हैं। अब हमारे मजमून का सवाल क्या है स्पेसिफिक पेपर में, स्कूल के तमाम तालिबे इल्मों का गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना जरूरी है। गैर निसाबी सरगर्मियाँ क्या होती है? एक्स्ट्रा करिकुलम, जिसमें आपका स्पोर्ट्स भी आ जाता है, डिबेट सोसाइटी भी आ जाती है, डिबेट क्लब भी आ जाता है आपका, और जितनी भी पढ़ाई से हटकर एक्टिविटीज होती है वो सब की सब आ जाती है, स्पोर्ट्स हो गया खास तौर पर। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले स्कूल के तमाम तालिब इल्मों का गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना जरूरी है। इस जुमले को एक पैराग्राफ में ढालना है, और इस जुमले को क्या करना है, इस जुमले में जो कुछ पूछा गया है उसकी वजाहत करनी है। अच्छा, हमने करना क्या है, डायरेक्ट लिखना नहीं शुरू करना। सबसे पहले तारुफ पेश करना है, और तारुफ किस चीज का? मजमून के मौजू का। मजमून का मौजू है क्या? गैर निसाबी सरगर्मियाँ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, जब तालिब इल्म इल्म हासिल करने के लिए स्कूल का रुख करते हैं, तो वहाँ तलबा की पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, तालीम के साथ साथ तरबियत भी होती है, क्योंकि गैर निसाबी सरगर्मियाँ तलबा की सलाहियत को निखारने और बढ़ाने में एक किरदार अदा करती है। अब हमने बता दिया गैर निसाबी सरगर्मियाँ क्या होती है। इसके बाद अब हम आ जाएंगे इस जुमले की तरफ, और वहीं से कंटिन्यू करते हुए इसकी वजाहत करेंगे। स्कूल के तमाम तालिब इल्मों का गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना जरूरी है, उसको उस तारुफ के साथ ही कंटिन्यू करेंगे कि निहायत जरूरी है कि स्कूल में मौजूद तमाम तालिब इल्म गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लें और गैर निसाबी सरगर्मियों का हिस्सा बने। क्यों? 20 अल्फाज का जो मजमून है उसमें हमें याद रखना है कि 70 पैराग्राफ का वर्ड्स का पहला पैराग्राफ होगा। अब जितना मैंने आपको समझाया, इसमें कम से कम 30-40 अल्फाज आसानी के साथ आ गए होंगे। अब आपने वो क्यों बताना है? भाई तलबा की तालीमी सलाहियत में इजाफा होता है, क्योंकि बहुत सारी गैर निसाबी सरगर्मियाँ ऐसी होती है जो तलबा की तालीमी सलाहियत में इजाफा करती है, उनकी ज़हनी सलाहियत में इजाफा करती है, उनके लिए बाइस शोहरत बनती है। अच्छा, जैसे खेल, अगर आप इस स्पोर्ट्स टीम में स्पोर्ट्स का हिस्सा बनते हैं, किसी टीम का हिस्सा बनते हैं, तो क्या होता है, उस खेल में महारत पैदा होती है, और फिर आप सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। अगर डिबेट सोसाइटी में जाते हैं, वोकैबलरी अच्छी होती है, मालूमात में इजाफा होता है। इस तरह से किसी न किसी सरगर्मी, जो भी 2 सरगर्मियां आप चुनेंगे उनके बारे में वजाहत देंगे। फिर आ जाते हैं हम इसकी जानिब। यह है हमारा पहला नुक्ता, लेकिन हमारा होगा इस दूसरा पैराग्राफ। कामयाबी हासिल करने के लिए जरूरी है कि सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दी जाए। जब पहला पैराग्राफ मुकम्मल हो, 2 लाइनें छोड़े, और उसके बाद दूसरे पैराग्राफ का आगाज करें, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट जो ये नुक्ता है इससे शुरू कर लीजिए। कामयाबी हासिल करने के लिए जरूरी है कि सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि अक्सर तलबा गैर निसाबी सरगर्मियों का हिस्सा बन के अपने आप को तालीम से दूर कर लेते हैं, और उनका गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की वजह से पढ़ाई में दिल नहीं लगता। तो जिंदगी में गैर निसाबी सरगर्मियों से ज्यादा हमारे तालीम हमारे काम आती है, क्योंकि हमें अपना मुस्तकबिल बनाना होता है, मुस्तकबिल संवारना होता है। तो मुस्तकबिल में कामयाबी हासिल करने के लिए तालीम की तरफ भरपूर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। इसी चीज की आप मजीद वजाहत करेंगे, और 70 अल्फाज में इस पैराग्राफ को मुकम्मल कर लेंगे।
इस पैराग्राफ को मुकम्मल करने के बाद आप फिर 2 लाइनें छोड़ेंगे और नए पैराग्राफ का आगाज करेंगे और आप अब इस दूसरे नुक्ते की तरफ जाएंगे या दूसरे मुकालमे की तरफ जाएंगे। अब यहाँ लिखा है गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से बाकी मज़ामीन में भी मदद मिल सकती है। मज़ामीन क्या है? सब्जेक्ट्स। आपके बाकी सब्जेक्ट्स में जिस तरह से आप देखें साइंस के मुकाबले होते हैं, जो इंग्लिश के मुकाबले होते हैं, IKLC, IKMC, इस तरह से, और ग्रीन लिविंग सोसाइटी, इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लेने से क्या होता है, आपकी मालूमात में इजाफा होता है। अगर किसी साइंस से रिलेटेड चीज में हिस्सा ले रहे हैं तो वो आपका सब्जेक्ट हिस्सा होता है। मैथ्स से रिलेटेड चीज में ले रहे हैं तो आपकी मैथ्स यानी रियाजी अच्छी होती है। इसी तरह से अगर तकरीरी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं तो आपकी उर्दू अच्छी होती है। किसी इंग्लिश वाले मुकाबले में या किसी ड्रामे में या किसी चीज में हिस्सा ले रहे हैं तो आपकी अंग्रेजी बेहतर होती है। तो आपने ये बताना है कि जी हाँ, गैर निसाबी एक्टिविटीज यानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, उर्दू है, इन सब में क्या होता है, बेहतरी आती है। और तीसरे पैराग्राफ को आपको इसी तरह मुकम्मल कर लेना है और आसानी के साथ आपका मजमून जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मजमून लिखने के बाद पहला पैराग्राफ लिखे रीचेक, दूसरा पैराग्राफ लिखे रीचेक, तीसरा पैराग्राफ लिखे रीचेक। अगर पेपर मुकम्मल हो जाए वक्त से पहले, टाइम बचे, तो एक बार दोबारा मजमून को दोहरा लीजिएगा। अपनी गलतियों को खुद दुरुस्त करें। एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका हरगिज न दें। अच्छा, मजमून में मैं एक बात और बता दूं, कंटेंट को की वजाहत थोड़ी मुश्किल भी होती है। अक्सर ऐसे अल्फाज सामने आ जाते हैं कि जिस जो हमने सुने हुए नहीं होते, या जो सुने हुए तो होते हैं लेकिन एग्जाम के मौके पे इतनी घबराहट और परेशानी होती है कि उसकी वजाहत करना आ नहीं रही होती। तो कुछ ऐसे अल्फाज आप शामिल करें कि जिससे आपकी वर्ड लिमिट आसानी के साथ पूरी हो और आपके कंटेंट को भी सहारा मिले। जैसे अलबत्ता, ताहम, इसके अलावा, इसके साथ साथ, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह के अल्फाज से अपने मज़ामीन को बेहतर बनाएं। अगर कोई बेहतर सा मुहावरा ज़हन में आ रहा है मज़मून के मौजू के मुताबिक तो उसको डाल दीजिए। कोई अच्छी अच्छी मिसाल सामने आ रही है उसे डाल दीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें। अगर मौजू के मुताबिक ज़हन में आ रहा है तो डालें। ये चीज़ें बहुत आसान है। इसके साथ साथ, इसके अलावा, ऐसे भी हो सकता है, ताहम, अलबत्ता, इस सूरत हाल को देखते हुए, ये चीज़ें आसान है। इसको आप आसानी के साथ मज़मून में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुहावरा, कोई ज़रबुल इम्साल अगर ज़हन में हो तो डालें, ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश ना करें। पेपर 2 का चौथा और आखिरी सवाल, ट्रांसलेशन। जब पुराना सिलेबस था तो मुझे ट्रांसलेशन लगता था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन नए सिलेबस में मैं कहती हूँ कि ट्रांसलेशन बहुत आसान है। एक ये 15 नंबर की हो गई है। उम्मीद है कि पहले जितने जो बड़े-बड़े पैराग्राफ्स आते थे 2, 3 या 1, उतनी बड़ी नहीं होगी। क्योंकि स्पेसिफिक पेपर में बहुत छोटा पैराग्राफ है, तो उम्मीद है इतना ही छोटा पैराग्राफ इंशाल्लाह जब परसों आपका पेपर होगा तो उसमें भी आएगा। ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले इसको रीड करना है। रीड करने के बाद मुश्किल अल्फाज के मानों पे एक नज़र दौड़ा लेनी है। कोशिश करें कि वर्ड बाय वर्ड करें। अगर वर्ड बाय वर्ड आपको मुश्किल लग रही, पूरे-पूरे जुमले होते हैं ना, उसको तरतीब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोशिश कीजिएगा वर्ड बाय वर्ड। पंक्चुएशन का बहुत ख्याल रखना है। जहाँ फुल स्टॉप आ रहा है, खात्मे का निशान यानी डैश लगा दीजिए। पंक्चुएशन का में कॉमा जहाँ आ रहा है, कॉमे का लगाइए। छोटे-छोटे अल्फाजों को चुनकर कीजिएगा। जैसे द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिंदगी की इब्तिदा, ऑन आवर प्लेनेट, हमारे सैयारे पे, इज वन ऑफ द मिस्टीरियस, इन राजों में से एक है। वी आर कंस्टेंटली, हम मुस्तकिल या मुसलसिल ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं टू सॉल्व, इसे हल करने की। तो कोशिश कीजिएगा वर्ड 3-3 4-4 अल्फाज लें और उसको ट्रांसलेट करें। पूरा पूरा जुमला करने के चक्कर में ग्रामर की आप बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं और ट्रांसलेशन में इतना सुधार पैदा नहीं होता। ट्रांसलेशन की तैयारी के लिए 3 to 4 एक पास्ट पेपर मार्किंग स्कीम खोलें पेपर 1 की और मार्किंग स्कीम पढ़ें। 2023 से शुरू करें, अक्टूबर, नवंबर, मई, जून, फिर 22, 21 और 20 पर जाइए। इस यहाँ से शुरू करें। कोशिश करें मार्किंग स्कीम को बहुत तवज्जो से पढ़ें, क्योंकि देखिए ट्रांसलेशन के सिर्फ 5 नंबर कम के तरीकाकार नहीं तब्दील किया है उन लोगों ने। मार्किंग स्कीम में देखें किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज को रिजेक्ट करते हैं,
कौन से अल्फाज सही है, कौन से नहीं है। कुछ मार्किंग स्कीम आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा ट्रांसलेशन को सॉल्व करना। कोशिश करें कुछ कंजंक्शंस याद कर लीजिए। खास तौर पे हाउ एवर वो आपको हर ट्रांसलेशन में मिल जाएगा। उसके माने ताहम, अलबत्ता। आपको उस वक्त ताहम समझ आ रहा है ताहम लिख दें, अलबत्ता समझ आ रहा है अलबत्ता लिखें। ट्रांसलेशन की तैयारी के लिए कुछ कंजंक्शन जरूर याद कर लें, तो इससे आपकी ट्रांसलेशन बहुत आसान हो जाएगी। आपको ईस्ट, वेस्ट, साउथ के माने याद और नॉर्थ के माने याद होने चाहिए, यानी मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब। और इसी तरह के कुछ अहम माने जो है वो आप जरूर याद करें, ताकि बआसानी आप ट्रांसलेशन कर सके, क्योंकि 15 नंबर का ये सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा P2 कितना आसान है और इसे हल करना भी कितना ही ज्यादा आसान है। अल्लाह हाफिज।